Hello everyone, good morning. I welcome you again in the topic that is data handling. Extremely important and easy topic. Before we begin with today's concept, let me just ask you, is that the practical geometry topic that is construction, did you all properly finish it? You ask yourself first of all. Is that we went quite faster? I just thought that the topic is very easy. As you were not in front of me, I never understood whether you could do it or no. But still, I'm just asking you today that is that quite fast? If so, please tell me. Whenever anything happens like this, that I am going fast, as you are not in front of me, I'm not able to understand whether I'm going fast or whether the speed is okay. Okay, I'm not able to understand. So please send kind of a feedback to me that sir, things are going faster, or you are not able to understand, or you need some time. So what we can do, we can add up another video accordingly. Okay, or we can keep a gap in between. So if I find a major number of students, a large number of students are finding difficulties, I will surely again come back to that. ठीक है, we are as it is going proper with the proper speed, we can manage all that. Okay, understanding for me is more important than completing. Your understanding is more important than completing, right? So remember that. In case if you're still finding practical geometry topic was faster or we completed it early, then let me quickly know about it. Okay, you can send the similar message in the group also, no problem at all, so that everyone understand. Okay, something is problematic not only for me, for others as well, so they will be free enough to discuss the same with me. Fine. Anyway, so today I'll continue. From tomorrow we can talk about that, in case if you find I thought the topic wasn't that difficult. The practical geometry wasn't that difficult, so I thought of covering it early, and even though there was a Sunday in between, so I thought of utilizing it, nothing else. Okay, so anyway, we'll continue it. So this was the question. I thought you may not understand it. Few of you could understand, few of you could do that question, but I thought you may not understand it. So again, I'm taking it, I'm telling you how can we do and how can you go about it. सबसे पहले अपना वाला simple y axis, and here is x axis. Okay, of course I have to consider or think about what should be on y axis, what should be on x axis. So it's very clear, let me tell you. These all जो दिख रहे हैं आपको, the name of the countries, these can be on x axis down here, right? So 1 2 3 4 5, I'll go for 5 because it won't fit in on my page. I'll go for 5. So 1, okay, then 2 3 4 and 5. I think 6 and 7 also possible. I'm not actually going to draw all that, so don't forget about it. So these are the countries. So South Africa, then we have Australia, Sri Lanka, then New Zealand, then we have England, we have Pakistan, we have West Indies, and of course, why to forget India? Okay, India. Okay, the last India. Anyway, now what I have to do here, understand it. On y-axis, of course, the numbers are expected. The numerical is expected number. So that's why the percentage, whatever we have seen, those I can put there. So 10, 20 is okay, isn't it? So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. That's it, right? So it is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80, right? This is done. And now this joint or double graph, actually what you have is nothing but double graph. So double graph, I have to take off the category like this. I'll show you. So this is the first category, which is empty, Champions Trophy 2 World Cup. Okay, CT 2 World Cup, W Cup 06. And the second one, if I take maybe shaded region, that is last 10 ODI in 2007, 10 ODI in 2007. So this is the way how we can go ahead with the graph.
and that's it. Now you can easily draw. So this is very important to understand that how can we take a double graph, where to take, what to take on the x-axis, what to take on y-axis. These all things to understand is extremely important in this particular graph. Once you understand that, the drawing graph is not at all difficult. Okay, तो चलो South Africa 75%, so it may be somewhere here. And 78 in the last ODI, so it is still here like that. That's it, and then shade it. Okay, so it's very simple. You can do it all by yourself. Okay, so do it yourself and get it done. Fine. तो सिंपल है ना, बहुत सिंपल था. तो ग्राफ ड्रॉ करना तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था. अभी हम लोग देखेंगे द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन दिस टुडेज टॉपिक और टुडेज पार्ट. वी आर नॉट गोइंग फास्ट नाउ, वी विल गो स्लो. First of all, we'll discuss about FDT. Okay, FDT. What is FDT? FDT means frequency distribution table. You have heard about this in the previous grades as well. Using tally mark. You heard about tally mark before this? Okay, ठीक है. At least ऐसे कुछ तो देखा होगा, ऐसे वाला. तो दिस itself is called as a tally mark. Okay, तो let us understand ये exactly होता क्या है. तो कुछ नहीं होता, आपको एक रॉ डेटा दिया हुआ रहता है. फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, इमेजिन करो ये रॉ डेटा है. अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वेर आस्क्ड टू से विच एनिमल दे वुड लाइक द मोस्ट टू हैव एज अ पेट. As the result are given below, the information is given below. Okay, make the frequency distribution table for the same. देखो, मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिख रहा है यहाँ पे. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मतलब क्या, FDT फॉर द सेम. ठीक है, तो इट्स वेरी क्लियर दैट वी आर आस्क्ड हियर कौन से पेट है. हमें क्या करना है, इस डेटा को एनालाइज करना है. मतलब कितने लोगों को कैट अच्छा लगता है, कितने लोगों को डॉग अच्छा लगता है. ऑल दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो क्या क्या देखते हैं, डॉग है, कैट है, फिश है, रैबिट है, और क्या क्या है भाई, काऊ है. अरे बाप रे, काऊ इज ऑल्सो पेट. फाइन. फिश तो हमने लिया है, रैबिट, फिश, कैट, डॉग, काऊ. ओके, हो गया, सब कुछ हो गया. तो चेक करते हैं. तो हमें क्या करना है, लिखना है बस डॉग लिखो, देन वी हैव कैट, देन वी हैव फिश, रैबिट, ओके, एंड अ काऊ. ओके, देन यहाँ पे होगा टैली मार्क. टैली मार्क अभी करना क्या है, टैली मार्क कैसे करना है, आई विल जस्ट शो यू. तो आपको ये जो दिख रहा है, ये सब कुछ आपको एक टेबल में ड्रॉ करना है. तो ये रहा वो टेबल. आई डोंट नो वेदर आई विल बी ओके विद द टेबल और नो. ये सब कुछ आपको एक टेबल में फिट कर देना है. ओके, दैट्स ग्रेट. That's it, right? So now I'll get the tally mark. Tally mark क्या करना होता है, मतलब क्या होता है, देखते हैं, बताता हूँ मैं आपको. सिंपली आपने करना क्या है, डॉग पहले इसमें है तो डॉग कट कर दो, यहाँ पे एक टैली मार्क लगा दो. कैट कर दो, यहाँ पे कैट, अगेन फिश, यहाँ पे फिश, कैट, अगेन कैट, रैबिट, ये आ गया रैबिट, डॉग, कैट, रैबिट, रैबिट, ओके, डॉग, कैट. अभी कैट जो है 4 हो गए, ये 5वां है कैट. सो आई विल जस्ट कैंसिल दैट. तो अगेन डॉग, अगेन आई विल कैंसिल, 5वां आ गया. डॉग और एक एक्स्ट्रा, कैट एक और, काउ, फिश, रैबिट कहाँ गया, रैबिट, ओके, डॉग अगेन, कैट अगेन, डॉग अगेन, कैट अगेन, कैट लवर्स है सारे. डॉग अगेन, रैबिट,
ठीक है, कैट अगेन तो ओके चलो कैट एंड फिश देन डॉग एंड डॉग पांचवा है. So this is the process how we go for tally mark. I have seen students doing like this. I'll tell you. अभी मैंने किया. This is the exact way to go for the tally mark. Okay, right way to go for tally mark. कैसे करते हैं? ऐसे डॉग करते हैं. एक डॉग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and then they give the tally mark. This is the very wrong process of doing it. Okay, so one by one करो. इसीलिए तो हम लोग उसको tally mark बोलते हैं. ओके वो टैली मतलब टैली करते जाना है. ओके चेक करते जाना है एंड टैली मार्क देते जाना है. दिस इज द वे हाउ वी हैव टू कंसिडर इट. एंड यहाँ पे लास्ट कॉलम जो है वो हम लोग इसका काउंटिंग लिखेंगे, कितने स्टूडेंट्स को डॉग पसंद है. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखो या फिर फ्रीक्वेंसी लिखो. ओके फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई वी कॉल एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिकॉज वी गेट अल्टीमेटली द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेट. तो ये जो पेट है इनकी फ्रीक्वेंसी मिल रही है. ठीक है, तो कितनी है डॉग की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब हाउ मेनी ऑफ दीज स्टूडेंट्स लाइक डॉग एज अ पेट, तो 10 है एंड कैट भी 10 है, फिश 3 है, रैबिट 4 है एंड काउ कितना है 1 है. टोटल चेक करते हैं. अरे यार ये क्या हो गया, लेट इट कम फास्ट. यस टोटल चेक करते हैं. हियर इज द टोटल 10 + 10 20, 20 + 7 8 28. So these are supposed to be 28. मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 exactly. Okay, I hope you understood this. So this is the way how we have to go for tally mark. This is called as a tally mark. Clear? But it was a ungrouped data. Okay, जो डेटा आप देख रहे हो ये क्या है, अनग्रुप्ड है. मतलब हमेशा ये डेटा काम नहीं करेगा ना. अभी फॉर एन एग्जांपल अगर इमेजिन करो कि ऐसा वाला डेटा हो, दीज आर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स. मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स ऑफ मैथ्स आउट ऑफ 50. तो ये क्लास है, इमेजिन करो 8th ए का क्लास है. उस 8th ए के क्लास के स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स है आउट ऑफ 50, मतलब 50 में से उनको कितने मार्क्स मिले हैं. तो ये है. अभी इन दिस केस आप लोग टैली मार्क का टेबल कैसे करोगे, डिफ़िकल्ट होगा इजंट इट. थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा. क्यों डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि लिखोगे क्या है यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 ये मार्क्स है ना, 6 7 ब्ला 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 50 तक जाओगे. ऐसे ही 1 कितने लोगों को मिले हैं, ऐसे ऐसे टैली मार्क करते जाओगे. इजंट इट दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ लाइक दिस, ये जो अनग्रुप्ड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड बोलते हैं. तो यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ग्रुप्ड डेटा की ज़रूरत पड़ेगी. ग्रुप्ड. नाउ व्हाई वी कॉल एज अ ग्रुप्ड, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. ओके, लेट अस नो अबाउट इट. ग्रुप डेटा क्या होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, मार्क्स चाहिए, टैली मार्क एंड फ्रीक्वेंसी. ये तो सेम ही रहेगा. ठीक है, मार्क्स ये जो दिख रहा है, ये जो यहाँ पे जो है वो पहले इसमें आता है. जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है टैली मार्क है यहाँ पे आएगा, ये फ्रीक्वेंसी है. तो वही सेम चीज़ है. अभी मार्क्स क्या है, तो कहना है राइट, देखो आउट ऑफ 50 है, मतलब टोटल मार्क्स इतने 50 है. तो कहना है से दैट दिस एज लाइक 0 to 10 एंड देन लाइक 10 to 20 देन लाइक 20 to 30 देन 30 to 40 एंड देन 40 to 50. कैन आई मेक इन दिस मैनर. ओके, श्योर, गेटिंग इट, अंडरस्टैंडिंग. तो ये जो होता है इसको बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा. ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसको बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप्ड एफडीटी. ग्रुप करके बनाया गया है. लेकिन इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन है. नाउ व्हाट इज दैट कंफ्यूजन, द कंफ्यूजन इज हियर कि अगर 10 ही मार्क है तो वो किस में आएगा, इस ग्रुप में आएगा या फिर इस ग्रुप में आएगा, क्योंकि दोनों जगह पे 10 दिखाई दे रहा है. देख लो यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है. तो इसमें से एग्जैक्टली वेयर एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू पुट 10. सो 10 वी आर गोइंग टू पुट इन द सेकेंड वन, नॉट इन द फर्स्ट वन. ओके, देख लो मैं आपको बोलता हूँ, सिंपल सी बात है. इस ग्रुप का मतलब क्या होता है, इस ग्रुप का मतलब होता है 0
till 10, मतलब 0 up to 10, not 10. ओके, सो 10 इज नॉट इंक्लूडेड, बट 10 तक सारे इंक्लूड होते हैं. ओके, सो इसका मतलब समझ में आ रहा है. इसका मतलब क्या होता है 0 to 10, मतलब क्या होता है 0 till 10, not 10. राइट, याद रखो. सो 10 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा. ये होगा 10 till 20, नॉट 20. 20 नीचे आएगा. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो 10 है 20 आ गया तो वो नीचे वाले इसमें आएगा, नॉट द फर्स्ट वन. ओके, सेकंड वाले में आएगा. इज दिस क्लियर? गॉट इट? चलो एनीवे हम लोग चेक करके देखते हैं. चलो आई शो यू, डोंट वरी. तो पहले 21 किस में आएगा, 21 इसमें आएगा. चलो आ गया. 10 किस में आएगा बताओ, फर्स्ट में आया सेकंड में आएगा, सेकंड में. 30 किस में आएगा, इसमें आएगा कि इसमें आएगा, नीचे में आएगा, यहाँ पे आएगा. राइट. 22 किस में आएगा, 22 यहाँ पे आएगा. 33 यहाँ पे आएगा. 5 भी मार्क मिल सकते हैं मैथ्स में, हॉरिबल है बाबा. 37 40 किस में आएगा. 12 इज इन दिस वन. 25 इज इन दिस वन. 42 यहाँ पे आएगा. 15 आएगा यहाँ पे. 39 40 केस में आएगा, है ना. 39 26 इज हियर. 32 इज इन दिस वन, तो क्रॉस करना है पांचवा. ओके, 18 in this. 27 is in this. 28 is again in this. 19 is in this, right. 29 is in this. 35 is in this, right, and so on. I hope you will complete it. Okay, it will take time but surely you will complete it. तो कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है आज का. आज आपको ये कंप्लीट करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो मैंने अभी भी किया, ये भी कंप्लीट करना है. एंड ये वाला जो है ये आपको आज ट्राई करना है इफ़ पॉसिबल. ठीक है, तो मैं आपको काम दे रहा हूँ, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड करना क्या क्या है. सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल करना है, फिर ये करना है, फिर ये एक एग्जांपल मैंने आपके लिए खुद करने के लिए दिया हुआ है. एंड एक्सरसाइज में से आपको सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करना है. सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट नहीं करना है. ओके, एक्सरसाइज नंबर 5.1. आपके पास टेक्स्ट बुक है, इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक का प्रिंट देना बंद कर दिया अभी. PDF सेंड करना, तो आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में से एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ये क्वेश्चन आपके सामने है ही, पड़ा हुआ है. ओके, सेकेंड क्वेश्चन ये आपको कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है और ये कंप्लीट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन और उसके 2, 5, टोटल 5 क्वेश्चन आज आपको FTT के ही करने हैं. FTT. ठीक है, आई होप यू कैन डू इट. Fine, so we'll stop this work here. Thank you so much. Bye bye. See you tomorrow in the next video of data handling.